नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अभी हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स का मैथ्स का पेपर। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं उनका पेपर कैसा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा गया पेपर? Well, it was very easy. Apart from some questions taking more time than usual, overall the paper was easy. And if somebody had studied even decent enough, they could have clearly passed and even got a full 80 out of 80 marks. ओके, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे आप अपने पेपर को? Well, content wise, the topics that were given in this paper, I would say they were easy to understand. They didn't try to overcomplicate it, they just gave straightforward questions. And in terms of writing, like how lengthy the paper, I would say it's a good 6 in terms of lengthiness. It was lengthy, but some questions were also easily written in shorter steps. ओके, रेट योर परफॉर्मेंस ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. I would s- I would like to use if I would scale it a 10. Okay, describe your maths paper in just one word. Spectacular. ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर बात की जाए, इस साल के अगर क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, या जो सैम्पल पेपर्स थे, तो क्या डिफरेंस लगा सब में आपको? Well, difference actually there were more similarities than difference, because what I had done to prepare for maths exam was actually look into the previous 10 years, like from 2014 to 2024. I have studied all the papers, done all the questions, and I have found very similar questions that are given almost bi-yearly basis in these papers. Like even there are some questions which are given in the NCRT as well as given in these previous year questions. I think I would say there was one question which I at first thought it may be new, but then I remembered that it's I think it's from 2014 or 2015. So overall, I think the case studies I found them to be new, but apart from that, from section A to section D, the wording may have been changed, but the overall crux of that question remains the same. Okay, as you mentioned earlier that the paper was lengthy, how did you manage the time? Well, for the questions which I wasn't able to devise an answer, I left considerable space. By considerable, I mean 1 to 2 pages, and I decided to deal with that at the end of the paper when I have completed the whole paper. And during that time, during the 1 hour, I was able to finish all the questions. Also, I was able to revise. Though one question took a considerable lot of amount of time, even though it was from NCRT, the question was still lengthy. So was able to manage my time by leaving the questions which I couldn't think of an answer at that moment, and then solved it during the last 1 hour of the paper. ओके, कौन सा कह सकते हैं बेसिकली टॉपिक, अलजेब्रा, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू? लाइक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगे हों? Well, all the questions from these topics were same, apart from integral calculus. One question from the integral calculus portion, which I found to be not difficult per se, but I would say quite lengthy. ओके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किस टाइप के थे? Well, differentiation and integration questions were of straight formulaic based. Basically, it's like write the formula, put the equation, and you get the answer. It was not something like giving like as seen as case studies. They were just basically do this straightforward. There was though in case study where we need to find the double derivative, single derivative. But apart from that, differentiation and integration questions were pretty straightforward. ओके, विच स्ट्रीम हैव यू टेकन? PCM with physical education and painting. ओके, विच पेपर डिड यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट? डोंट से फिजिक्स, except for physics, because everybody is saying physics, 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 physics. Yes, physics. Actually it was a surprise for every one of us, because physics today. I mean, this year's physics paper was too theoretical. Had too many theoretical questions. Yes. So apart from physics, I would I say think it's a tough one. no, not tough one. I would say it's physical education, because chemistry surprised me a lot, because it was way too easy,
I mean, for someone like me who didn't study chemistry that much, or even thought chemistry as a good subject, I hated this subject because of the ridiculous exceptions that it created. But that paper turned out to be way too easy. So I would say by process of elimination, physical education paper would be difficult. Okay, what do you want to pursue in future? What do you want to become? Well, I would like to join the army. I'm thinking in the engineering division, and more specifically in signals and communications. Okay, next exam कौन सा है? Next exam, 11th March is my English exam. Yes, and then on 18th March is my final exam of painting. Okay, English exam में मोस्टली पीपल नेगलेक्ट इंग्लिश, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. तो अभी आपका क्या प्लान है कि नहीं इंग्लिश के लिए भी बराबर मेहनत करनी है, या फिर नहीं ठीक है यार हो जाएगा इंग्लिश, तो क्या ही है? Well, I would say सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बट सब्जेक्ट्स जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उनको स्टडी करने के लिए वो चेंज होना चाहिए. फॉर लेट्स से इंग्लिश का ले लेते हैं, इंग्लिश और मैथ्स का दोनों कंपेरेटिव एग्जाम ले लेते हैं. मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में बेसिकली स्ट्रेटजी ये होती है, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना समझ आएगा, उतना पैटर्न पकड़ पाओगे और उतना क्वेश्चंस जो है खुद से सॉल्व कर पाओगे. इंग्लिश का क्या है कि यू नीड टू टेक अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट and spend at least more than 1 hour, more than 1 hour, more than 1 hour or even 3 hours just studying the literature, because English is just reading story, and also there's some logical reasoning, because in the reading comprehension basically demands your logical reasoning, your understanding of the textual information that is presented in front of you, and there is some remembering portion like the format of a letter, invitation, reply to invitation. But I would say if we are talking about level of effort, I mean obviously I wouldn't put that much level of effort in maths as compared to in English. Both will have different efforts, but I wouldn't neglect both subjects just because one is strictly based on memory and logical reasoning, and other does not so much. How was the paper? Paper was medium. Moderate. Moderate. 1 से 10 के स्केल पर आप कितना रैंक करोगे? 8. 8. कौन सा सेक्शन ऐसा था कि यार लगाओ कि यार ये क्यों आ गया, और कौन सा ऐसा था कि लगाओ कि मतलब जितना उस सेक्शन ने मूड खराब किया था इसने उतना ही अच्छा कर दिया है? सेक्शन सी कह सकते हैं, और सेक्शन बी ने वो रिकवर कर दिया था. अलजेब्रा, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी, किस पर ज़्यादा फोकस किया था, या बहुत बैलेंसिव पेपर आया था? बैलेंसिव पेपर आया था, और लेकिन फोकस ज़्यादा अलजेब्रा पे किया था. इंटीग्रेशन मुझसे होती नहीं है होती नहीं है, और कैलकुलस पे इतना नहीं किया था अलजेब्रा. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए कैसे थे? डिफरेंशिएशन के इजी थे थोड़े. इंटीग्रेशन जैसे मैंने कहा मुझसे होती नहीं है, तो मेरे लिए तो मुश्किल ही थे, और ठीक ही थे, नॉर्मल. आगे मैथ्स परस्यू करना है? करना पड़ेगा. क्या करना है? अब तो पीसीएम ले लिया, अब तो बीटेक ही करना है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, मैथ्स ही परस्यू करना पड़ेगा. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर आया, ज़्यादा इजी क्या था, ये या पहले वाले पेपर्स? वो वाले थोड़े ज़्यादा इजी थे. इसमें कहीं कहीं किसी पॉइंट पे ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था. मतलब ऐसा ही आया हुआ था, मिक्स था एकदम पूरा. एनसीईआरटी से क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, या एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चंस उठाए हुए थे, या कहीं और से क्वेश्चंस थे, या बहुत ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चंस को, ऐसा कुछ? डिफरेंशिएशन जो था वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया था, और बाकी जो क्वेश्चंस थे मतलब वो एकदम एग्जैक्टली वही नहीं, बट सिमिलर थे. नेक्स्ट एग्ज़ाम की क्या प्रिपरेशन है? नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है. लोग अक्सर इंग्लिश को बहुत वैसे ले लेते हैं कैजुअली कि हाँ हो जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है. इंग्लिश पे भी प्रॉपर फोकस करना है, और इंग्लिश काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है सब लोगों के लिए, तो सबको पसंद भी है, तो अच्छे से हो जाएगा. हाउ वाज द पेपर? वेरी इजी. 1 to 10 के स्केल पर कितने मार्क्स दोगे खुद को? 9. 9. एग्ज़ाम पैटर्न जो था इस बार, और जो क्वेश्चंस आए थे वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हों या फिर जो सैम्पल पेपर्स थे, और जो मेन क्वेश्चन पेपर आया, क्या डिफरेंस दिखा आपको, और क्या एकदम सेम था? बिल्कुल सेम ही पेपर थे, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रखे थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे सारा easy paper. पेपर क्या बहुत बैलेंसिव तरीके में आया था, या किसी टॉपिक को बहुत वेटेज दिया था, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिया था? फॉर एग्जांपल कैलकुलस, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, ये 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं, तो
किस पर सबसे ज़्यादा फोकस था और किस पर सबसे कम था आपके सेक्शन में? मेरे सेक्शन में प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस था, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से मतलब केवल सेक्शन ए में क्वेश्चंस आए थे, बाकी और जगह नहीं दिखे। ओके, कौन सा सेक्शन आपको ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे सारे मतलब बाकी पूरी मेहनत खराब कर दी, और कौन सा सेक्शन ऐसे लगा कि यार इसने तो एकदम मन ही खुश कर दिया? सेक्शन ए तो पूरा ठीक हो गया, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन मतलब पूरा नहीं हो पाया, आधा आधा था, इसलिए वो ख़राब लगा। ठीक है, पेपर पूरा कंप्लीट किया? पूरा कंप्लीट हो गया, काफ़ी टाइम पहले होगा, 15-20 मिनट पहले शायद। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, टाइम कैसे मैनेज किया आपने, किस सेक्शन को कितना टाइम दिया, इफ़ यू कैन एलाबोरेट? मैंने स्टार्ट सेक्शन बी से किया, और लास्ट में जब 1 घंटा बचा था तब सेक्शन ए करा, और उसके बाद भी थोड़ा टाइम रह गया था तो रिवाइज कर लिए सारे क्वेश्चंस एक बार। नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम है? नेक्स्ट इंग्लिश है। जाके अब आराम करना है या इंग्लिश तो यार हो ही जाएगी? हाँ, इंग्लिश तो हो ही जाएगी, क्या पढ़ना। हाउ वाज द एग्जाम, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? इट वॉज़ ईजी। मेरा तो सेट 3 था, तो सेट 3 के एमसीक्यू बहुत ईजी आए थे, एंड पेपर बस लेंदी था, बाकी सब कुछ अच्छा था, सब ईजी था। मेरा तो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। 1 to 10 के स्केल पे आप अपनी परफॉर्मेंस को कितने मार्क्स दोगे? 7 दूंगी, क्योंकि मैं सेल्फ बिलीव में ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने जितनी मेहनत करी थी उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गया है पेपर। अच्छा, पेपर बहुत बैलेंसिव वे में आया था, क्योंकि बेसिकली पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो अलजेब्रा, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी। बहुत बैलेंस्ड पेपर था या किसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस था, किसी पर कम था? नहीं, सही था। प्रोबेबिलिटी पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, और प्रोबेबिलिटी का एक एमसीक्यू एंड केस बेस भी आया था, तो प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी टफ लगी। बाकी इंटीग्रेशन एंड ऑल ऐसा लग रहा था बहुत टफ आएगा, नहीं होगा, बट इंटीग्रेशन सारे हुए थे मेरे से। डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन भी सारे, सब कुछ अच्छा था, बस प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ख़राब थी। ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन पेपर में? नहीं। और कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि यार ये इसमें, क्योंकि एज यू गिव 7 मार्क्स टू योर परफॉर्मेंस, तो ऐसा कौन सा सेक्शन था जहाँ आपको लग रहा हो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कट सकते हैं, और ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको लग रहा है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करवा सकता है? सेक्शन ई वाज लाइक मैंने लास्ट में करा था, तो मे बी मैंने जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हो, लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन ए और बाकी सारा अच्छा गया। बस सेक्शन ई थोड़ा सा जल्दी मैंने किया था, तो मे बी उसमें मार्क्स कट जाए जल्दी में, जो भी मैंने करा, क्योंकि लास्ट का आई गेस मैं एक मिनट तक भी लिख ही रही थी कंटिन्यूसली। अब नेक्स्ट तो इंग्लिश है, उसमें तो बहुत ही लिखना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज, एंड उसके तो कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत टफ आते हैं, तो वर्क करना पड़ेगा, और 2 ही दिन है बस, 11 को ही पेपर है। ओके, तो इंग्लिश के लिए अब जाते ही तुरंत मतलब पढ़ाई करने लगना है? हाँ, उसके लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 90 अबव तो लाना ही है ना। अगर इस बार इंग्लिश का पेपर भी टफ़ ही बनेगा, क्योंकि इंग्लिश 12th का टफ़ ही होता है, 10th में तो बहुत ईजी होता है, तो उसमें तो स्कोर करना पड़ेगा 90 अबव। अच्छा, अगर ओवरऑल मैथ्स पेपर की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस था या फार्मूला बेस्ड? आई विल से बोथ, क्योंकि एमसीक्यू तो कॉन्सेप्चुअल ही होता है मैक्सिमम, और बाकी सारे तो फार्मूला एंड सब कुछ मिक्स होता है। जैसे फिज़िक्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आए थे बिल्कुल भी, बट मैथ्स में आया था, सब कुछ एक्सपेक्टेड ही आया था। फिजिक्स से सबका डिसअपॉइंटमेंट अभी तक दिख ही रहा है। हाँ, लाइक जब से फिज़िक्स हुआ है ना, तब से लाइक ऐसा है कि सारे पेपर टफ़ ही आएंगे। तो फिर हमने केमिस्ट्री के लिए भी बहुत मेहनत करी थी, मैथ्स के लिए भी बहुत मेहनत करी थी कि नहीं अगर फिज़िक्स जैसा आ गया फिर तो क्या ही होगा हमारा, लेकिन भगवान ने संभाल लिया हमें। आगे क्या परस्यू करना चाहते हो? मैं तो एविएशन परस्यू करूँगी आफ्टर 12th, तो जेई तो मैंने दिया है, और इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। आई डोंट नो जॉब है भी या नहीं है। आईआईटी वालों को सब जॉब मिलेगी, बट अब आईआईटी वाले भी आईआईटी बाबा बन रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। ओके, हाउ वाज द पेपर? इट वॉज़ वेरी नाइस, अच्छा था पेपर, मॉडरेट लेवल का पेपर था, और ऑन एंड ऑल फिज़िक्स जैसा कुछ नहीं था, मतलब थिंकिंग बेस्ड पेपर था। ओके, मतलब आज मैंने देखा सारे बच्चे एकदम एक्साइटमेंट, खुशी खुशी निकल रहे थे एग्जामिनेशन हॉल से। हाँ, क्योंकि पेपर अच्छा गया, ऑल्दो लेंदी था और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल थिंकिंग का क्वेश्चन था, पर अच्छा गया पेपर।
1 to 10 में आप अपनी परफॉर्मेंस को कितना रैंक करोगे? I would rank my performance 7 out of 10 because I struggled in some of the questions, but mostly हो गया अच्छे से. ओके, विच सेक्शन वाज मोर डिफिकल्ट एंड कौन से सेक्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज था आपके सेट में, अलजेब्रा, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी? कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज था मेरे क्वेश्चन पेपर में, और सबसे डिफ़िकल्ट था सेक्शन डी एंड ई, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस बहुत थे और उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस थे. अच्छा, और एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चंस थे या वर देयर एनी सरप्राइजेस वेटिंग फॉर यू? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट डाल दिया था उन्होंने, वो तो दिख गया था क्वेश्चन, एंड बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके ही पूछा था. मतलब बेसिकली एनसीईआरटी ही था पूरा? नॉट फुल्ली एनसीईआरटी, बाहर से भी आया था, बट एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस थे. ओके, कौन सा सेक्शन आपको ऐसा लगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है और कौन सा ऐसा सेक्शन लगा कि ये तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स फेच करवा देगा? डिफ़िकल्ट तो कोई भी सेक्शन ऐसा लगा नहीं मुझे, बट सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग सेक्शंस डी और ई थे. ऑल्दो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट इजी क्वेश्चंस थे उसमें, और मेरे को डिफ़िकल्टी थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन में आई, क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछे थे, तो उसी में. सेक्शन ए कैसा था? असर्शन रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, या 1 मार्क क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? नहीं, क्वेश्चंस तो 1 मार्कर आसान थे, उसमें से 1 और 2 मे बी 2, 3 थोड़े थिंकिंग बेस्ड थे, जिसमें आपको थिंक करके करना है, तो वो थोड़ा था. हाउ वाज द एग्जाम, इजी और टफ? ईजी. इजी. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपनी परफॉर्मेंस को कितना रेट करोगे? 8 on और 9 on 10. कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई होप कि 72 प्लस आ जाने चाहिए. ओके. Out of 80. पेपर बहुत बैलेंस्ड था या फिर मतलब कि कोई ऐसा था कि कोई सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हो या किसी पे बहुत कम किया हो? इन माई सेट आई थिंक काफ़ी कुछ ईजी था, बस मुझे थोड़ा सा MCQs में टाइम लगा. ओवरऑल अच्छा था पेपर. ओवरऑल अच्छा था. सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था, प्रोबेबिलिटी या कौन से सेक्शन पे, कौन से टॉपिक पे बेसिकली? कौन से, आई थिंक सबसे ऑलमोस्ट इक्वल ही मार्क्स, इक्वल वेटेज के ही क्वेश्चंस आए थे, ना किसी से ज़्यादा ना किसी से कम. अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, सैम्पल पेपर्स की, सीबीएसई ने भी इस बार सैम्पल क्वेश्चन निकाले, और जो मेन क्वेश्चन पेपर आ जाए उस पर आपको क्या डिफरेंस लगा? नहीं, आई थिंक सब कुछ NCERT बेस्ड, मेरे सेट की बात करूँ तो NCERT बेस्ड और PYQs से ही रिलेटेड था. ओके, और कौन सा सेक्शन आपके हिसाब से ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है? आई थिंक जो 5 मार्कर और 3 मार्कर वाले सेक्शंस थे, वो 5 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं. हाँ. तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट से जो अभी अपना इंग्लिश का पेपर देकर आए थे. मोस्टली बच्चों ने पेपर को इजी या मॉडरेट रैंक किया और परफॉर्मेंस भी बच्चों के हिसाब से उनकी बहुत अच्छी रही. पेपर थोड़ा सा लेंदी था लेकिन क्वेश्चंस बच्चों के हिसाब से काफ़ी इजी आए थे. हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स और इस साल के क्वेश्चन पेपर में भी उनसे डिफरेंस पूछा, वो भी उन्होंने बताया. अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से वो करते हैं ये भी उन्होंने बताया. लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही. बने रहे हमारे साथ. नमस्कार.